Hello, my dear friends. I'm Professor Vayam Khan, and we are resuming to our online classes. And this is the subject of automatic control system for final year students of mechanical engineering of University Dr. Baba Saheb Marathwada University, Aurangabad. And this is the unit number 3 that we are discussing, and this is the final part that we are going to discuss for this unit number 3. Before this, we have completed unit number 1 and unit number 2, and in this third unit we are done with control action and the part of controllers, that is P type, I type, PD type, PI and PID type of controllers. And from electrical systems, we have completed various types of electrical systems like servo motors and various servo mechanisms. Okay, and the last part of this electrical system is remaining, which we are going to cover today. And before proceeding to that, I'll request you to like this video, share this video, and subscribe to my channel. Thank you. Let us begin. So today we are going to discuss stepper motors. Let us discuss stepper motor basics. Now this stepper motor is quite, or you can say, is somewhat different than the regular motors like induction motor or your servo motor. Now servo motor is also an application of induction motor, in which we use stator and a rotor part, and the principle of working we all know how the working of servo motor is. But this stepper motor, it performs the operation in particular steps. Whenever I'm saying particular steps, means a fixed amount of degrees are rotated, or you can say the shaft or the rotor is rotated with a fixed amount of degrees. कुछ एक फिक्स डिग्रीज में जो शाफ्ट है वो क्या होगी, इस स्टेपर मोटर की रोटेट होगी. ओके, दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मोटर. इस मोटर का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसकी शाफ्ट का रोटेशन हमेशा कैसा होगा, स्टेप में होगा. स्टेप में होगा मतलब क्या, एक फिक्स डिग्री से वो रोटेट होगी. अब फिक्स डिग्री बोलने के बाद में जैसे कि 1 सेकंड में वो रोटेट होगी, समझ लो 5 डिग्रीज 10 डिग्रीज. ओके, फिर दूसरे सेकंड में वो फिर से 5 या 10 डिग्रीज से रोटेट होगी. इससे उसका स्टेप रोटेशन है 10 डिग्रीज का. तो हर एक सेकंड में वो या जो भी फिक्स्ड टाइम रहेगा उसमें उसका रोटेशन कितना रहेगा, 10 डिग्रीज. इसका मेन एडवांटेज ऐसा है कि जब भी इसके रोटेशंस होंगे, जितने भी स्टेप्स होंगे, उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो कि जो पोजीशन है शाफ्ट की वो डिटरमाइन कर सकते हो. So you can determine the position of the shaft by simply counting how many steps have been performed. आप उसको कितने स्टेप्स परफॉर्म हो चुके हैं इसके बेसिस पर बिना किसी सेंसर की मदद से आपकी शाफ्ट की पोजीशन आप बता सकते हो. सो यू कैन फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द शाफ्ट. ओके, सो इसका कंस्ट्रक्शन ही कुछ इस तरीके से रहता है कि जो रोटेशन है वो रोटेशन हमारे स्टेप्स में परफॉर्म होता है, स्टेप्स में. ओके, तो कैसा रहता है कंस्ट्रक्शन या क्या है इसका एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में. ओके, सो स्टेपर मोटर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं. लेट अस डिस्कस अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मोटर. सो जैसे बाकी के मोटर्स रहती है, लाइक ऑल द रेस्ट ऑफ द मोटर्स हैव वन स्टेटर एंड वन रोटर. सो इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ स्टेटर, रोटर एंड अ स्टेटर वाइंडिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉइल. ओके, now this figure shows here variable reluctance type of stepper motor. इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं that we are going to discuss in coming slides. Okay, so there is presence of a rotor. एक rotor रहता है, okay, which is connected with shaft. एक stator है जो outer part है, outer covering है. Okay, but the stator of this stepper motor is quite different than the rest of the motors. इसके स्टेटर के इंटरनल पार्ट्स में या इंटरनल हिस्से में, और यू कैन से द स्टेटर हैज़ इंटरनल टिथ प्रेजेंट ऑन इट. इसके अंदर के पोर्शन में टिथ रहते हैं, दांत रहते हैं. कुछ इस तरीके से टिथ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं.
Okay, so this number of teeth depends on the application, depends on the capacity of the motor and rest of the things. Okay, but you will have number of teeth present inside the stator. स्टेटर के अंदर क्या रहेंगे, टीथ रहेंगे. वैसे ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ टीथ हमारे रोटर पे एक्सटर्नली प्रेजेंट आपको दिखेंगे. ओके, मे बी टीथ रोटर को नहीं रह सकते, बट स्टेटर के अंदर ये टीथ प्रेजेंट रहेंगे. अब इस टीथ के ऊपर क्या रहता है, हमारा स्टेटर वाइंडिंग रहता है, जिसको हम कॉइल बोलते हैं. ओके, सो इस स्टेटर्स के अपोजिट टीथ्स पे हमारी वाइंडिंग्स रहेंगी. जैसे ये वाली वाइंडिंग है, सो दिस इज ऑन दिस टीथ, इस टीथ के ऊपर है, सो इट इज़ कंटिन्यूइंग टू द अपोजिट टीथ, ये अपोजिट टीथ के ऊपर भी जा रही है. उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से वाइंडिंग से कनेक्टेड है. ओके, so these two opposite and these two opposites are connected with each other by means of stator winding. Okay, so ये इसकी खासियत है कि इसमें स्टेटर में इंटरनल टीथ रहते हैं. कैसे टीथ रहते हैं, इंटरनल टीथ. ओके, वर्किंग कैसा होता है, एग्जैक्टली ये वर्क कैसा करता है, ये हमको क्या करना है, डिस्कस करना है. एंड व्हाट मेक्स द स्टेप मोटर टू परफॉर्म इन अ स्टेप. देखो, स्टेपर मोटर, स्टेपर मतलब स्टेप्स में चलता है. सो द नेम्स कम फ्रॉम द स्टेप्स दिस मोटर दैट दिस मोटर परफॉर्म्स. जो स्टेपर मोटर का नाम है वो इस पे से आया है कि जो मोटर है हमारी स्टेपर मोटर, वो स्टेप्स में काम करती है. ओके, इसीलिए उसको नाम दिया गया है स्टेपर मोटर. ओके, सो हम क्या करते हैं, बाय एनर्जाइजिंग वन और मोर ऑफ द स्टेटर फेजेस अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल. जो कॉइल में करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से जो हमारा रोटर है वो उस स्पेसिफिक कॉइल की लाइन में अलाइन हो जाता है. अब ये कॉइल कहाँ पर वुंडेड है, द कॉइल इज वुंडेड ऑन द इंटरनल टीथ ऑफ द स्टेटर. ये स्टेटर है, समझ लो ये हमारा कॉइल नंबर ए है, ये कॉइल नंबर बी है और ये कॉइल नंबर सी है. दिस इज अ 3 फेज मोटर. ये 3 फेज मोटर है, इसके अंदर 3 कॉइल हैं. ओके, सो ये पहली कॉइल जो है ये वुंडेड है इस टीथ के ऊपर, इन दोनों टीथ के ऊपर. ओके, सो जब भी हम इस कॉइल ए को एक्टिवेट करेंगे, मतलब इसके अंदर करंट सप्लाई करेंगे, जब भी इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इन टीथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्रिएट होगी. देयर विल बी जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस टीथ. इन टीथ के बीच में, इस कॉइल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में जनरेट होगी, ये रोटर क्या हो जाएगा, इस रोटर का अलाइनमेंट इन टीथ के साथ में हो जाएगा. ओके, बिकॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सो दिस रोटर विल गेट अलाइंड विद दिस 2 टीथ. सो दिस विल बी अ स्टेप. ये क्या होगा, इसका जो रोटेशन होगा, अब ये कैसा होने वाला है, स्टेप में होने वाला है. मतलब कैसा होगा आगे और मैं बताता हूँ. ठीक है, सो दिस गेट्स अलाइंड, दिस रोटर गेट्स अलाइंड विद द एनर्जाइज्ड कॉइल, और क्या बोलेंगे, हमारे एनर्जाइज्ड टीथ के लाइन में वो अलाइन हो जाते हैं. अब ये होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, कॉइल बी को एक्टिवेट करता हूँ. कॉइल ए हम बंद कर देंगे, कॉइल बी को एक्टिवेट करेंगे. तो जैसे ही कॉइल बी को एक्टिवेट करेंगे, दिस एरो शुड बी लाइक दिस. ओके, इस साइड में होना चाहिए. सो जैसे ही कॉइल बी को हम एक्टिवेट करेंगे, इसके कॉइल बी जिन टीथ के ऊपर प्रेजेंट है उन टीथ में क्या जनरेट होगा, वापस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और ये रोटर वापस से क्या हो जाएगा, उस टीथ के साथ में अलाइन हो जाएगा. सिमिलरली जब मैं सी कॉइल या तीसरी कॉइल को जब एक्टिवेट करूँगा, वापस से इस कॉइल और इस टीथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ये रोटर ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, और फिर से क्या हो जाएगा, उसके बीच में अलाइनमेंट आ जाएगी. सो इन दिस वे द रोटर कंटिन्यूसली रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू दी एनर्जाइज्ड कॉइल. जो कॉइल जैसे जैसे एनर्जाइज होंगी, जिस सीक्वेंस में एनर्जाइज होगी, उस सीक्वेंस में क्या होगा, हमारा जो रोटर है उन टीथ के साथ में, उन कॉइल्स के साथ में क्या होता जाएगा, अलाइन होते जाएगा. इन दिस वे यू परफॉर्म क्लॉकवाइज रोटेशन. क्लॉकवाइज क्या होगा, उसका रोटेशन होते रहेगा. अब जो सीक्वेंस हमको परफॉर्म करना है, इट शुड बी लाइक ए बी सी फॉर मेकिंग इट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और वही अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज करना है, सो द रोटेशन शुड बी ए, देन सी एंड देन बी. ओके, सो सी बी ए भी आप उसको बोल सकते हैं.
ओके। सो इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि स्टेप्स में उस रोटर को घुमाते हैं बाय मीन्स ऑफ द टिथ प्रेजेंट ऑन द स्टेटर एंड द वाइंडिंग wounded on the teeth. Okay, so this is the principle of working of your stepper motor. Okay, so I hope you understand it. So हम फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. At the beginning coil A is energized and the rotor rotates clockwise by 60 degree. अब ये जो रोटेशन हो रहे हैं, ये जो अलाइनमेंट हो रही है रोटर की इस कॉइल के साथ में, इस टिथ के साथ में, सो दिस रोटेशन इज फिक्स्ड. ये रोटेशन कैसा है? फिक्स्ड है. बिकॉज ये जो टिथ है, ये टिथ एक स्पेसिफिक एंगल्स पर प्रेजेंट है. ये एक दूसरे से कुछ डिग्रीज से, स्पेसिफिक डिग्रीज से क्या है? सेपरेटेड है. दीज आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक एंगल. जैसे ये 0 डिग्रीज पर है, दिस इज एट 180 डिग्री. ओके, दिस विल बी एट सम डिग्रीज, दिस विल बी एट सम डिग्रीज. ओके, सो लाइकवाइज सो इनके बीच में कुछ एक स्पेसिफिक एंगल है. उसी एंगल से क्या होगा? इस रोटर का रोटेशन होगा. रोटर का रोटेशन मतलब क्या? एक एक स्टेप में उस रोटर का रोटेशन होगा. जैसे कि इनके बीच में 60 डिग्रीज का रोटेशन होने वाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ओके, सो दिस इज हाउ योर स्टेपर मोटर वर्क्स. लेट अस डिस्कस द स्टेपर मोटर टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन. स्टेपर मोटर के टाइप्स और कंस्ट्रक्शन हम समझ के लेते हैं. ओके, सो based on the performance of stepper motor both in terms of रेजोल्यूशन मतलब क्या रहता है कि स्टेप का साइज कितने डिग्रीज से बढ़ने वाला है. 5 डिग्रीज से, 10 डिग्रीज से, 15 डिग्रीज से, कितने डिग्रीज का उसका स्टेप रहेगा, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन. सो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेपर मोटर बोथ इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, स्पीड एंड टॉर्क, स्पीड और टॉर्क के बेसिस पर उसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टेपर मोटर का वो क्या होता है? चेंज होता है. कोई भी स्टेपर मोटर, हर एक स्टेपर मोटर इज़ नॉट सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन. उसका कंस्ट्रक्शन हर बार सेम नहीं रहेगा. किसमें 4 टिथ रहेंगे, किसमें 6 रहेंगे, किसमें 8 रहेंगे, 12, 16, मल्टीपल टिथ की भी मोटर्स हमको देखने मिल सकती है. और उसी का मेन एडवांटेज ये है कि उतने ही स्टेप्स में वो मोटर क्या होते रहेगी, हर बार रोटेट होगी. ओके, सो देर आर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस. लाइक रोटर के लिए जो अलग अलग मटेरियल यूज़ होगा उसके बेसिस पर इसके टाइप्स होते हैं. सो पहला जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं इसके अंदर वो है परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जो रोटर है इट इज़ मेड अप ऑफ द परमानेंट मैग्नेट. ओके, देन दिस परमानेंट मैग्नेट इज़ हैविंग south pole and north pole, and as soon as your you can say stator is actuated or coil is activated, the rotor gets aligned with respect to that stator. जो स्टेटर या जो टिथ में जिसमें आप करंट फ्लो कर रहे हैं उस हिसाब से क्या होता है, उसका कंटिन्यूस अलाइनमेंट होता रहता है और ये रोटर क्या होगा, कंटिन्यूसली घूमेगा. ओके, सो द रोटर इज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक टाइप. इसका मेन एडवांटेज ये है कि इट गारंटीज गुड टॉर्क. लो स्पीड पर अच्छा टॉर्क हमको इस परमानेंट मैग्नेट टाइप ऑफ स्टेपर मोटर में क्या होगा, मिलेगा. लो स्पीड पर गुड टॉर्क, हाई टॉर्क या अच्छा टॉर्क हमको यहाँ पर मिलेगा. एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ डिटेंट टॉर्क. डिटेंट टॉर्क मतलब एक किस्म का रेजिस्टेंस टॉर्क है. मतलब जब शाफ्ट के ऊपर किसी तरीके का लोड रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस परमानेंट मैग्नेट दिस लोड विल ऑल्सो बी बैलेंस्ड. उसको भी क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा, अपोज किया जाएगा. इसी को बोलते हैं डिटेंट टॉर्क. सो दिस मीन्स द मोटर विल रेजिस्ट इवन इफ नॉट वेरी स्ट्रांगली टू अ चेंज ऑफ पोजिशन रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कॉइल इज एनर्जाइज्ड और नॉट. कॉइल एनर्जाइज की हो या ना की हो, हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं. ओके, देन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है, जैसे कि इसका हम स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते. इट इज़ यूज्ड फॉर लोअर स्पीड एप्लीकेशंस एंड लोअर रेजोल्यूशन कंपेयर टू दी अदर टाइप्स. दूसरे टाइप्स से कम रेजोल्यूशन, कम स्टेप्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, स्पीड ज़्यादा नहीं है, लो स्पीड है, बट हाई टॉर्क एप्लीकेशंस में यूज़ होता है. देन देर इज़ वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप ऑफ रोटर यूज्ड. अभी जो हमने देखे थोड़ी देर पहले, इसमें वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप आयन कोर रहेगा. इस आयन कोर का एक स्पेसिफिक शेप रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है क्रॉस की तरह आपको शेप दिख रहा होगा. और इसी शेप की वजह से क्या होता है कि जो स्टेटर है, स्टेटर के साथ में ये जो टिथ है या जो हमारा रोटर है वो क्या होता है,
मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस स्पेसिफिक शेप की वजह से उसके साथ अलाइन होता है। जैसे ये स्पेसिफिक शेप दिया है, दैट्स वाई दिस आयन कोर इज गेटिंग अलाइंड विथ you can say phase A or teeth A. Okay, with this solution it is easier for it is easier to reach higher speeds और higher resolution पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसके अंदर डिटेन टॉर्क नहीं है, इसलिए इसको लो टॉर्क एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। हाई स्पीड बट लो टॉर्क, ओके, उसमें यूज़ किया जाता है। Then there is third type which is called as hybrid. Hybrid is combination of variable reluctance and your permanent magnet type, जिसके अंदर शेप जो है आप देख रहे होगे हाइब्रिड शेप है यहाँ पर। इस वजह से कैसा रहता है, इसके अंदर दो कैप्स यूज़ होते हैं, दो अल्टरनेटिंग टीथ यूज़ होते हैं एंड दे आर मैग्नेटाइज्ड एक्सियली, उसको एक्सियली मैग्नेटाइज किया जाता है एंड वेन एवर वी आर सप्लाइंग द करंट टू द स्टेटर द रोटर गेट्स रोटेटेड विथ स्पेसिफिक डिग्रीज, कुछ एक स्पेसिफिक डिग्रीज में इसका रोटेशन होगा एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ रोटर इन इट द कॉस्ट इज क्वाइट हाई एंड इट becomes quite expensive. Okay, but for good performance, but for higher performance, this type of hybrid type of rotors are used. Then there is stator भी है इसके अंदर। स्टेटर जो है बेसिकली इसके अंदर इंटरनल टीथ रहते हैं, तो जैसे इंटरनल जितने भी फेज हमको इसमें यूज़ करना है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीथ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसमें 4 टीथ का इस्तेमाल किया है, सो इसमें 2 फेज़ हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें 6 टीथ का इस्तेमाल किया है, इसमें 3 फेज़ हम इसको कर सकते हैं। ओके, सो जनरली जो फेजेस है 2 फेज़ बहुत पॉपुलर है, ज़्यादा करके 2 फेज़ मोटर्स चलती है, कॉमनली यूज्ड है, बट 3 फेज़ इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम एप्लीकेशंस एज वेल एज 5 फेज़ इज़ ऑल्सो यूज्ड, बट द use of this 3 phase and 5 phase type of motors is less common. Okay, but the main characteristics of this stator circuit include its number of phases and pole pairs. Okay, so वो मेन हमारा इसके अंदर स्टेटर का काम है। द स्टेपर मोटर इज़ कंट्रोल्ड बाय सम डिफरेंट वेज, कुछ ख़ास तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन प्रीवियसली दैट द मोटर कॉइल्स नीड टू बी एनर्जाइज्ड, मोटर कॉइल को एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एनर्जाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस में रोटर क्या हो, रोटेट हो। ओके, सो ये जो रोटेशन है, ये जो अलाइनमेंट है, ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसको मैनेज करने के लिए हमको कुछ डिवाइसेस लगते हैं, जैसे कि है एक ट्रांजिस्टर ब्रिज। Now the transistor bridge is a physically controlling device. इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस रहते हैं मोटर कॉइल्स के बीच में। एक ट्रायंगल के तरीके से आप उस ब्रिज को इमेजिन कर सकते हैं। मतलब ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, इट कैन बी सीन एज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड इंटरप्टर, उसको हम इंटरप्टर की जैसा यूज कर सकते हैं इस ट्रांजिस्टर ब्रिज को। और इस ट्रांजिस्टर ब्रिज की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि अल्टरनेटिंग जो सीक्वेंस है या जो सीक्वेंस है वो हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे पहले ए को एक्टिवेट करना है, फिर बी को करना है, फिर सी को करना है, तो जब ए एक्टिवेट होगा तब बी और सी क्या हो जाएंगे, इंटरप्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। जब बी करेंगे तो ए और सी होंगे, जब सी करेंगे तो ए और बी इंटरप्ट हो जाएंगे। तो ये जो काम करने वाला है इंटरप्शन का वो करेगा ट्रांजिस्टर ब्रिज। इसके बाद ट्रांजिस्टर ब्रिज के लिए हमको एक प्री ड्राइवर लगेगा विच इज़ अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। वो डिवाइस प्री ड्राइवर जो है वो ट्रांजिस्टर का जो एक्टिवेशन है, चालू बंद होना, कौन से कॉइल को कंट्रोल करना है, कितना वोल्टेज देना है, ये सब चीज़ें क्या करेगा, हमारा प्री ड्राइवर करेगा। और इस प्री ड्राइवर को कंट्रोल करने के लिए इन एक्चुअल हमको एक MCU यूनिट मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट क्या है कि हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर रहेगा जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की रहेगी एज़ पर द एप्लीकेशन कि मुझे रोटर को इतने रोटेशन में रोटेट करना है, इतने कॉइल्स को एक समय पर एक्टिवेट करना है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें रहेगी वो उसके अंदर प्रोग्राम करके फीड की जाएगी ताकि वो प्री कंट्रोलर को कंट्रोल कर सके, प्री ड्राइवर को कंट्रोल कर सके और ये प्री ड्राइवर क्या करे, ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर सके। और जो ट्रांजिस्टर है वो एट एक्चुअल फिज़िकली हमारे मोटर के अंदर हमारे मोटर को क्या करेगा, फिज़िकली कंट्रोल करेगा।
ओके, सो दिस इज़ द कंट्रोलिंग मेथड ऑफ स्टेपर मोटर। सो वहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी है स्टेपर मोटर के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज में है कि ड्यू टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेपर मोटर्स डू नॉट रिक्वायर अ सेंसर। सबसे मेन एडवांटेज ये है कि आप बिना किसी सेंसर के यहाँ पर बता सकते हैं कि मेरे शाफ्ट का या मेरे मोटर का कितना रोटेशन कंप्लीट हुआ है। ओके, ड्यू टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेपर मोटर्स डू नॉट रिक्वायर अ सेंसर टू डिटेक्ट द मोटर पोजीशन। आप सिर्फ स्टेप्स गिनो, एंगल कितना है रोटेशन का वो पता कर लो। आप सिंपल काउंटिंग करके क्या कर सकते हैं कि रोटेशन कितना हुआ है ये बता सकते हैं। इन एडिशन द स्टेपर मोटर कंट्रोल इज़ प्रीटी सिंपल। जो कंट्रोल्स है वो काफ़ी आसान है, एमसीयू की मदद से आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मोटर डज नॉट नीड अ ड्राइवर बट डज नॉट नीड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। और कॉम्प्लेक्स इसको एक इट डज नीड अ ड्राइवर बट इट डज नॉट नीड ए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। बट जो ट्यूनिंग है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ट्यूनिंग बोलने के ट्यूनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, द मीनिंग ऑफ ट्यूनिंग हियर इज़ जो स्टेप्स अलाइन होने वाले हैं या जो रोटर और स्टेटर का अलाइनमेंट होने वाला है, जितने एंगल में अलाइनमेंट होने वाला है, इसका जो ट्यूनिंग है, इसका जो वाइंडिंग है, ये बहुत प्रॉपरली होना चाहिए, तभी जाके उसका जो स्टेप्स है वो अच्छे से परफॉर्म होता है। ओके, जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। एंड विथ माइक्रो स्टेपिंग, मतलब माइक्रो स्टेपिंग छोटे छोटे स्टेप्स देकर आप क्या कर सकते हैं, हाई एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं अप टू 0.07 डिग्री 0.07 डिग्रीज तक आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, स्टेपर मोटर्स ऑफर गुड टॉर्क एट लो स्पीड्स। अच्छा टॉर्क मिलता है लो स्पीड्स पर, बट हाई स्पीड्स पर टॉर्क अच्छा नहीं है। एंड इट इज़ हैविंग ग्रेट कैपेसिटी फॉर होल्डिंग पोजीशन। जो उसकी होल्डिंग पोजीशन है वो अच्छे से होल्ड करता है। उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है। डिसएडवांटेज ऐसे है कि एक आधी स्टेप मिस हो सकती है कभी कभी। फिर दूसरी डिसएडवांटेज ऐसा है कि लो टॉर्क है। ओके, तो हाई स्पीड पे वो लो टॉर्क देता है। देन जो मोटर्स है वो बहुत ज़्यादा करंट कंज्यूम करते हैं। करंट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है एज इन टर्म्स ऑफ करंट कंजम्पशंस। एंड इस वजह से क्या होता है कि कई बार ओवर हीटिंग हो सकता है। स्टेपर मोटर्स का लो टॉर्क है, बिकम्स प्रीटी नॉइजी एट हाई स्पीड्स। बट इन ओवरऑल जब हम बात करते हैं टू समराइज द स्टेपर मोटर, it is always good to use these stepper motors in various applications because they are not too much expensive, they are cheaper, they perform at good speeds, efficiency अच्छी है, torque ठीक है, speed अच्छी है। ओके, सो जहाँ पर हाई टॉर्क एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस है वहाँ पर तो नहीं यूज़ करेंगे, बट जहाँ पर हाई स्पीड लो टॉर्क एप्लीकेशंस है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशंस कौन से हैं, तो आपके वीडियो कैमराज में ओके इसमें यूज़ होता है, प्रिंटर्स में यूज़ होते हैं, 3D प्रिंटर में यूज़ होती है, हमारे फोटोग्राफ के कैमरा में यूज़ होता है, ATM मशीन्स में यूज़ होता है, एनग्रेविंग मशीन्स में, रोबोटिक्स में, रोबोटिक आर्म्स में यूज़ होता है, साथ ही साथ में हमारे CPU यूनिट में यूज़ होता है, कई अदर डिवाइसेस है जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो द स्टेपर मोटर इज़ एक्सटेंसिवली यूज इन वेरियस एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे स्कूल्स के कॉलेजेस के बच्चे जो छोटे छोटे रोबोट्स बनाते हैं 4 पैर के मोटर की मदद से, 4 व्हील की मदद से, तो उसमें वो स्टेपर मोटर का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट स्टेपर मोटर एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। विल नॉट कंटिन्यू, विल स्टार्ट न्यू unit in the next video. Till then, please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you.